یہ یہی محمد سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تیسرے پارے کی سورت اور سب سے آخری سورت سورۃ الناس نکال لیجیے، سورت نمبر 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ قل، اس کے بعد آ رہا ہے اعوذ۔ اس لفظ سے ہم پوری طرح واقف ہیں۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ رب الناس، حرف جر، رب واقف ہیں، را با با، رب الناس، اس لفظ سے بھی ہم واقف ہیں۔ الف نون سین، انس۔ ملک الناس، لفظ ملک سے بھی ہم واقف ہیں۔ الہ الناس، لفظ الہ سے بھی ہم واقف ہیں۔ ناس کا لفظ دوبارہ آیا، تیسری بار آیا۔ من شر الوسواس الخناس، من حرف جر، شر آیا، اس کے بعد را کے نیچے زیر آ گیا کسرہ۔ من شر الوسواس، وسواس اردو میں لفظ ہم لوگ وسوسہ استعمال کرتے ہیں۔ الخناس، یہ لفظ نیا ہے۔ الذی، اس سے بھی ہم واقف ہیں، وہ جو، الذی، اللذانی، الذین، یوسوسو، پھر وہی لفظ آیا، وسواس سے ہی نکلا ہوا، یوسوسو۔ فی حرف جر ہے، صدور الناس، را کے نیچے، صدور کے را کے نیچے کسرہ لگ گیا۔ فی صدور الناس، کیوں لگا؟ حرف جر کی وجہ سے۔ الناس پھر آیا۔ من الجنۃ والناس، یہ لفظ من، میم کے اوپر نون جو آ رہا ہے، نون زبر آ رہا ہے، من، یہ لفظ من ہے جو حرف جر ہے۔ الجنتی، آخر میں بولتے کے نیچے زیر آ گیا، اس لیے کہ حرف جر ہے۔ والناس، پھر لفظ و اور الناس پھر آیا۔ نیچے سے چلتے ہیں، من پر زبر کیوں آ گیا، اس پر فتح کیوں آیا، جبکہ یہ من میں کرتا رہا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں من من سے۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ ہم لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پر زبر، وہاں پر بھی زبر آ گیا، ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں اس آیت کو اگر اس طرح پڑھا جائے، آیت نمبر 6 کو، من الجنۃ والناس، درست ہے، من الجنۃ والناس درست ہے، لیکن جب آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو من پر رکنا پڑے گا، جزم پر رکنا پڑتا ہے، من کے اوپر نون کے اوپر جزم ہوگا، رکنا پڑے گا،
اور اس کے بعد جو آ رہا ہے الف لام اور جیم پھر نون آ رہا ہے، نون پر تشدد ہے، یعنی ایک جزم ہے ایک زبر ہے، دو جزم ایک ساتھ آ رہے ہیں. الف حمزۃ الوصل ہے، لام نہیں پڑھا جائے گا اس لیے کہ نون حرف قمری ہے، اس لیے نون کے اوپر شدہ ہے. تو دو جزم ایک ساتھ آ رہے ہیں. جب بھی دو جزم ایک ساتھ آتے ہیں تو ایسی حالت میں جزم کے اوپر زبر یا زیر یا پیش ڈپینڈنگ اپون لگایا جاتا ہے تاکہ فلوئنسی پڑھنے کی رہے. اسی لیے من الجنۃ والناس. اب آئیے پہلے لفظ کی طرف ہدایت. قل، قل قاف واو لام سے نکلا ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا بعد میں. قاف واو لام سے نکلا ہے. اس لفظ سے قرآن کے اندر 1718 الفاظ ہیں، 1780 الفاظ قاف واو لام سے نکلے گی. اس کی الگ الگ شکلیں آ رہی ہوں گی لیکن روٹ الفابیٹس وہی ہے، قاف واو لام. اور قل کے معنی ہوتا ہے کہو، قل کہو. یہ امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے. کسی کوئی کہا جا رہا ہے کسی کو کہو یا کہیے. تو قل اعوذ کہیے یا کہو میں پناہ لیتا ہوں برب الناس، اپنے لوگوں کے رب کی. بات کا ترجمہ میں نے کی کر دیا. میں نے بتایا تھا ان الفاظ کا ترجمے عام طور سے اس کے معنی تو ساتھ لکھا جاتا ہے واقعہ، لیکن چونکہ اردو میں جملہ بنانے کے لیے یہ جو پریپوزیشنز ہیں مختلف استعمال کیے جاتے ہیں. تو قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ لیتا ہوں کس کی؟ جو رب ہے تمام لوگوں کی، تمام لوگوں کا، اس کی. میں پناہ لیتا ہوں اس کی جو رب ہے تمام لوگوں کا. الناس تمام کے تمام لوگ. الف لام لگا ہوا ہے، یہ ناؤن کیا کہتے ہیں وہ جو کامن ناؤن، پراپر کامن ناؤن. ملک الناس وہ لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا آقا ہے، لوگوں کا مالک ہے. یہ مالک لفظ سمجھیں، یہ قلم میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کا مالک ہوں، ہے نا. میں نے خریدا ہے نا اسے، تو میں اس کا مالک ہوں. میں اسے توڑ دوں، آپ کو کیا اعتراض ہوگا؟ بھائی ان کا قلم تو انہوں نے توڑ دیا، پھینک دوں، آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اعتراض کریں گے تو حماقت کی بات ہوگی. میری چیز تھی، میں مالک ہوں اس کا. تو اللہ رب العزت مالک ہیں تمام انسانوں کے، ملک الناس تمام انسانوں کے مالک. دو باتیں کہی گئی. کہو کہ میں پناہ لیتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، تمام انسانوں کے مالک کی، آقا کی. الہ الناس تمام انسانوں کے الہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. لا الہ الا اللہ تمام انسانوں کے الہ کی. من شر الوسواس، من منے سے شر، اردو میں ہی بولتے ہیں، بڑا شریر ہے یہ لڑکا، ہے نا. شر، شین را را را، شین را را، شر، برائی، شرارت، شر. قرآن میں اس سے الفاظ آئے ہیں 31 بار، 31 ٹائمز. میں آپ کو وہ الفاظ ان کو بتا کر کے آپ کا وقت بچا رہا ہوں. 31 بار آئے. من شر
अलवसवास, अलवसवास, वसवास का लफ्ज वाव सीन से बना है। ये 4 हुर्फी लफ्ज, वाव सीन 4 हुर्फी लफ्ज। मैंने बताया, आपसे अर्ज किया था, 4 हरूफ के अल्फाज बहुत, जो बेसिक अल्फाज जिनके 4 हैं बहुत कम है, उन्हीं में से एक आ गया। लफ्ज वाव सीन से अल्फाज कुरान में 5 हैं और ये पांचों तकरीबन इसी शक्ल में, इसी मानों में। वसवसा हम जानते हैं, वसवसा के लफ्ज़ी मानी होता है कि किसी चीज में बड़ी खामोशी के साथ हरकत पैदा कर देना। कहूँ बेच इसी मानों में वसवसा इस्तेमाल होता है। शैतान आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम दिल में वसवसे करता है, बड़ी खामोशी से वो दिल में कोई बात डाल देता है। अल खन्नास, खन्नास लफ्ज खा नून सीन से निकला है, खा नून सीन। अब तक मुझे यकीन है आप लोग इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि कुरानी अल्फाज को देख के आप उसके रूट अल्फाबेट्स निकाल सकते हैं। ऐसा है या नहीं? ऐसा आप लोगों ने कोशिश की है? थोड़ा बहुत अभी मतलब कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करें, सिवाय जिसमें हुरूफ इल्लत होगा वहां आपको दिक्कत होगी, लेकिन वहां भी आप अंदाजा कर लेंगे कि जो यहाँ पर लफ्ज या तो वाव या अलिफ या वाव या ये में से कोई है, लेकिन जो जिसमें हुरूफ इल्लत नहीं वहां तो बिल्कुल वाज़ा हो जाता है। कुलूब, काफ लाम बे, कुलूब, यही उसका होना चाहिए। खालिक, खा लाम काफ, यही होना चाहिए। मखलूक, खा लाम काफ, है ना? इस तरह आप कोशिश करें, ये बड़ा जरूरी है, ये जिसकी तरफ मैं अब तक ले जा रहा हूं। खन्नास, मैंने कहा ये लफ्ज कुरान में 2 बार आया, इनकी मजीद बात में करूंगा। 2 बार आया ये लफ्ज खन्नास। किसको कहते हैं? आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है स्कूल में शरारतें करते हुए। किसी के साथ शरारत की है, वहां से घिसक गए ताकि पता ना लगे किसने किया है उसके साथ। किसी को एक थप्पड़ लगाया पीछे से, वहां से हट गए, जब तक वो घूम के देख रहे हैं तो हट गए वहां से। क्यों? ऐसा ही होता है। आज जो बेशुमार इस किस्म के वाकयात होते हैं टेररिज्म के, करने वाला वहां से करके घिसक जाता है। ऐसे ही है ना? ये खन्नास के मानी यही है कि वसवसा डाल के घिसक जाना, फूट जाना। इसने वसवसा डाला है, उसके बाद घिसक लिया वहां से। अब वो वहां पर नहीं है। दिल में वसवसा किसने डाला? शैतान ने। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लेकिन क्या हम अपने दिल में शैतान का नक्शा देख सकते हैं? नहीं, फूट गया वो करके, घिसक लिया। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उस बुराई से जो वसवसे की है, और वो करने वाला कौन है? अल खन्नास। एक नाउन आ रहा है अल लगा के, ये कौन है? किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? शैतान के लिए। अल खन्नास, वो जो शख्सियत है जो शरारत करके घिसक लेता है, अल खन्नास। अल लगाया गया है, जाहिर हो रहा है किसी खास शख्सियत की बात की जा रही है। वो शख्सियत कौन है? शैतान लईन की। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अल्लज़ी, वो जो, युवस्विसु, फिर वही लफ्ज आया, जो वसवसे करता है, फी में,
सुदूर, सदर कहते हैं, ये मानी होता है सीना। ये सीने को अरबी में सदर कहते हैं, सीने को अरबी में सदर कहते हैं। हम लोग कहते हैं सदरी पहनते हैं, सदरी। वो क्या होता है, सीने को छुपाने वाली जो चीज होती है वो सदरी कहलाती थी। अब तो खैर दूसरे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। सदरी सुना है नाम, ये सदरी, सदरी। और सुदूर जमा है उसकी, सदर की जमा है सुदूर, सदर की जमा है सुदूर। वो जो वसवसे करता है सीने में, किसके? अन्नास, लोगों के। वो लोगों के सीने में वसवसे करता है। मिनल जिन्नत वन्नास, वो जिन में से है। जीम नून नून, जिन। जीम नून नून से कुरान में 199 अल्फाज आए, 199 जिन। असल में लफ्ज जिन के मानी है एक गैर मरई शय, ऐसी शय जिसका इंसान इदराक नहीं कर सकता अपने हवास से, गैर मरई। जन्नत को भी इसीलिए जन्नत कहा गया कि इंसान उसका सही इदराक नहीं कर सकता अपने हवास से खमसा से नहीं कर सकता। जिन, जन्नत का भी लफ्ज इसी से निकला हुआ है, जीम नून नून से। यहां पर अल जिन्नात, अल जिन्नती, इशारा है जिन्नात की तरफ। ये कॉमन नाउन इंसान भी इस्तेमाल किया गया है जिन्नात में से। वन्नास, और लोगों में से फिर कॉमन नाउन इस्तेमाल किया। ये वस्फ से जिन्नात भी करते हैं और इंसान भी करते हैं। किसी बात की तरफ ख्याल दिला करके उसके बाद कहा जी अच्छा भाई हम जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। आपकी तरफ इशारा करके, ओ जी वो आसिम साहब, अरे उनकी तो बात न करें, वो तो ऐसे और ऐसे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा भाई जा रहे हैं। मैंने पूछा भाई क्या ऐसे वैसे? छोड़े, चले गए, अस्सलाम वालेकुम। क्या किया उन्होंने? मेरे दिल में आपके खिलाफ वसवसे डाल दिए। आ रही है बात समझ में? बहुत समझ रहे हैं? तो ये है सूरत नंबर 114 सूरत अन्नास। मैं इसको फिर एक रवानी के साथ मैं उर्दू में कहता हूं। कहो मैं पनाह लेता हूं जो उसकी, जो रब है तमाम इंसानों के, तमाम इंसानों को पालने वाले हैं, तमाम इंसानों को की नशोनुमा करने वाले, तमाम इंसानों की जरूरियात को पूरी करने वाले। मैं उसकी पनाह लेता हूं। वो मालिक है तमाम इंसानों, वो इलाह है तमाम इंसानों। वही है जिससे सवाल करो, वही है जिससे मदद तलब करो, वही है जिसकी फरमाबरदारी करो। कोई माने ना माने, इलाह तो अल्लाह ही है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, किस चीज से पनाह ले रहा हूं? उस हफ्सी की जो रब है, जो मालिक है, जो इलाह है। वसवसे के शर से जो अल खन्नास करता है। यह अल खन्नास अब यहाँ पर जाहिर हो गया, वो एक शैतान भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, जैसे कि आगे की आयत बता दी। हर वो शय जो शर की तरफ रहनुमाई करने वाली है वो अल खन्नास है। ऐसी रहनुमाई करने वाली शय आमतौर से रहनुमाई करके आपके दिल में वसवसे डाल करके फूट लेगी, वो साथ नहीं रहेगी। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो जो वसवसे करता है लोगों के सीनों में। मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नातों में से भी और इंसानों में से भी, दोनों ही में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार एक सहाबी ने सवाल किया, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या रसूलल्लाह क्या इंसानों में भी शैतान है? जवाब आपने दिया तो और क्या, वो जिनों के शैतान से ज्यादा खतरनाक है। इंसान की शैतान जो ये खन्नास वाली हरकत करता है ना, वो जिनों से भी ज्यादा खतरनाक है।
जिनको अल्लाह ताला ने शैतान को हम पर इख्तियार ये नहीं दिया है कि मुझसे वो कोई काम जबरदस्ती करवा दे, सुभान अल्लाह। लेकिन इंसान के पास ये इख्तियार है, वो इंसान जो शैतान का चेला है उसके पास ये इख्तियार है कि कोई काम मुझसे जबरदस्ती करवा सकता है अल्लाह की नाफरमानी। इसीलिए वो कहीं ज्यादा खतरनाक है जिन्नात के शैतानों से। ये हो गई सूरत 114। सूरत नंबर 113 पे आए जब कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, फिर वही लफ्ज कुल आऊज़ु बिरब्बी अल फलक। फलक का क्या हो सकता है? फा फे लाम काफ, वाज़ह है ना। फलक, ये लफ्ज फलक कुरान में सिर्फ 3 ही बार आया है, ओनली 3 टाइम्स। मिन शर, मिन भी वही, शर भी वही, मा खलक, खलका, खलाका, खलका, मिन खलक। लफ्ज खलक, खलाका, काफ से बना हुआ लफ्ज कुरान में 273 टाइम्स आया है। ये इतनी बार आया है, ढूंढ के निकालना चाहिए ना हमें। पूरे हफ्ते हम बैठे होते हैं, क्या करते हैं यार, निकालो ना ढूंढ के। खलक 273 times। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, मिन शर मालूम है, गासिकिन क्या होगा? गैन सीन काफ, है ना। इस गैन सीन काफ से कुरान में सिर्फ 4 बार अल्फाज 4 बार आया है ये लफ्ज, ओनली 4 टाइम्स। गासिकिन इज़ा, इज़ा के मानी होता है जब, नोट कर लें, इज़ा के मानी जब, आमतौर से आम माने इसका जब है, लेकिन बहरहाल कई बार जरा माने बदल भी जाता है उर्दू में जब इस्तेमाल कर, आमतौर से जब है। इज़ा वक़ब, वक़ब का क्या होगा? वाओ काफ पे वक़ब, ये एक बार आया है, ओनली यहीं पर आया और कहीं नहीं आया, वंस ओनली। वमिन शर्रि, मालूम हमें, नफ़्फ़ाती, नफ़्फ़ाती, नफ़्फ़ाती। मैं से को सीन की तरह नहीं पढ़ रहा हूं, से की आवाज TH जैसी आवाज है, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं द, टी के करीब आवाज। से की आवाज ता के करीब है, और ता और सा के दरमियान, ता के करीब है लेकिन आवाज TH जैसी है। तो मिन नफ़्फ़ाती, नफ़्फ़ात, इसका क्या होगा? नून फे और से, नून फे और से। ये कुरान में एक ही बार आया है, वंस ओनली, यही पर आया है। फिल उक़द, फी मने से हम जानते हैं, अल उक़द ऐन काफ दाल, जिसको हम कहते हैं कि ये आपसे सवाल करें कि आपका अक़्द हो गया है, यही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आपका अक़्द हो गया, इशारा शादी की तरफ है, निकाह की तरफ। अक़्द, फिल उक़द, लफ्ज ऐन काफ दाल, ये पूरे कुरान में 7 बार आए, 7 टाइम्स। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हासिदिन हासीनदार, और आगे हसद भी आ रहा है, हासीनदार, एक ही लफ्ज है। हसद उर्दू में ही बोलते हैं, हासीनदार, ये कुरान में कुल 5 बार आया है, 5 टाइम्स। अब अल्फाज किस माने की तरफ आते हैं। फलक, फलक के मानी होता है, ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सुबह के बाद जब पू फटता है,
अंधेरा घटता है और रोशनी नमूदार होती है। अंधेरा हट करके रोशनी उससे नमूदार होती है। ये इसके मानी यही है, फलक के मानी। फेरी लाम काफ के मानी है अंधेरे का फटना। अरबी में जो भी लफ्ज फेर फा से शुरू होता है उसके मानी में कहीं ना कहीं ये लफ्ज फटने का तस्वुर जरूर होता है, किसी चीज के बिखर जाने का तस्वुर जरूर होता है। बहरहाल तो मैं पनाह लेता हूं उसकी जो रब है, उसका जो सुबह की रोशनी अंधेरे को फाड़ के नमूदार करता है। आ रही बात, जो रब है अल फलक, फलक का रब है, यानी सुबह की रोशनी, सुबह के अंधेरे को फाड़ करके रोशनी को नमूदार करने वाले जो कर रहा है, वो जो ये एक्शन हो रहा है उसका भी रब वही है। कौन? अल्लाह। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। तमाम शर से जो उसने तख्लीक की है। अल्लाह ने शर तख्लीक नहीं की है, अल्लाह ने जो भी तख्लीक किया है वो भलाई है इंसानों के लिए, पूरी कायनात के लिए। लेकिन हर शय के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। कोई शय ऐसी नहीं जिसमें सिर्फ अच्छाई हो सिवाय अल्लाह के साथ। हम सब इंसान बड़े अच्छे हैं तो कहीं बहुत बुरे भी हैं। ये पेन बड़ा अच्छा है जो मेरे हाथ में है, लेकिन मैं अगर इससे आपके हाथ में गड़ा दूं तो क्या होगा? ये बहुत बुरा है। चाकू बहुत अच्छी चीज है, सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल होती है। हमारी घरों में मोहतरमाएं सब सब्जी काटती हैं, अगर ना काटे तो खाने को कैसे मिले भाई? इतनी मजेदार पकी हुई सब्जियां। लेकिन इसी चाकू से अगर किसी को पर हमला कर दिया जाए, उसका हाथ काट दिया जाए, जख्मी कर दिया जाए तो बुरी शय। तो यहाँ यही कहा जा रहा है मिन शर्रि मा खलक, शर से उसकी जो उसने तख्लीक की है, जो चीजें तख्लीक की है उसके शर से। अल्लाह ने जो तख्लीक किया है जितनी चीजें, उसके शर से। मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। गासिकिन लफ्ज क्या है इसमें? गा, गैन, सीन, काफ है ना? पहचाना आसान है ना? तीन उर्फी लफ्ज निकालना आसान है। मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। गासिकिन गसका, गसका कहते हैं इस चीज के छा जाने को। ये लफ्ज आमतौर से इस्तेमाल होता है अंधेरे के छा जाने के लिए, यानी जब अंधेरा छा जाए। इज़ा, जब, वक़ब, वक़ब का लफ्ज इस्तेमाल होता है जब सितारे डूबने लगते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है। सितारे वापस जाने लगते हैं अपनी जगहों से, सुबह के वक्त ये होता है। आप देखिए सितारे गायब होना शुरू होते हैं। इज़ा वक़ब। मिन शर्रि नफ़्फ़ासात। नफ़्फ़ासात कहते हैं, नफ़ासा इसके मानी है, हम लोग अक्सर जाते हैं बुजुर्गों के पास, कहते हैं कि दम करते हैं मुझे, तो वो आयतल कुर्सी पढ़ करके कर देते हैं। कैसे करते हैं? मेरी तरफ देखें, दम कर दिया उन्होंने, है ना? मेरी खाला अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, वो बहुत किया करती थी।
बहुत ज्यादा, उनको बहुत ज्यादा इस बात का ख्याल रखते हैं। बहरहाल तो नफ़ासात, नफ़ासात ये लफ्ज है, इसके मानी है दम करके दम करके किसी चीज पर दम करने वाली, किसी चीज पर दम करने वाली, किसी चीज को ऊपर कुछ पढ़ करके थू करके दम करने वाली, जिसका ये आमतौर से इसके मानी किया जाता है जादूगरनी। जादूगरनी, मर्द नहीं, जादूगरनी। मिन शर्र नफ़्फ़ासात फिल उक़द, कहाँ फूकती हैं ये? गिरों पर। ये आमतौर से जादू करने वाले यही करते हैं, गिरा बांधते हुए फूकते हैं, थू करते हैं उसका। सिर्फ फूकना नहीं होता इसके मानी, नफ़सा के मानी फूकना नहीं होता, बल्कि इस तरह फूकना होता है कि मुंह से कुछ जर्रात थूक के भी जाए। आज के जमाने में उसके साथ कोरोना भी जाए, इसलिए कि कोरोना जो है खांसी वगैरह में थूक के जर्रात से ट्रांसमिट होता है। तो उस शर से, फूकने वालियों की शर से जो गिरोह में फूकती हैं, वह मिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, और उसके शर से किसके? हासिद, हसद करने वाला। हासिद उर्दू में बोलते हैं, वो बड़ा हासिद है, हसद करने वाला। जब वो हसद करता है, हासिद हर वक्त हसद नहीं करता, देखता है कि भाई ये तो बड़ा आपने खूबसूरत चश्मा लगाया हुआ है, भाई बड़ा खूबसूरत चश्मा है ये, अब उसने हसद किया इसका। इज़ा हसद, पूरा तर्जुमा सुने एक बार। कहो मैं पनाह लेता हूं उसकी जो रब है फलक का, जो रब है फलक का, अंधेरों को फाड़ कर रोशनी निकालने वाले का। किस चीज से? उन तमाम चीजों के शर से जो उसने बनाई है, तख्लीक की है, उन तमाम चीजों के शर से। मिन शर्र मा खलक, जो उसने बनाया। व मिन शर्र गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरे के शर से जब वो फैल जाए, ये वक्त असल में मगरिब के अजान के बाद का वक्त है। इसीलिए ऐसे औकात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों को घर के अंदर बुला लो, बच्चों को घर के अंदर बुला लो। मगरिब की अजान जैसे ही शुरू हो, बच्चे घर के अंदर आ जाएं, जब अंधेरा हो जाए फिर बेशक वो बाहर जाए, कोई हर्ज नहीं। मिन शर्र इज़ा मिन गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और शर से उन जादूगरनियों के जो गिरोह में फूकती हैं। और फिर शर्र हासिदिन इज़ा हसद, और उसके शर से, हासिद के शर से जब वो हसद करता है। ये दोनों सूरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इससे बेहतर अल्लाह की पनाह लेने की और कोई शय नहीं। अल्लाह की पनाह में जाने के लिए इन दो सूरतों से बेहतर कोई सूरतें नहीं। ये पहली सूरत उन तमाम चीजों पर, सूरतुल फलक, बाहर से आने वाली तमाम चीजों के लिए अल्लाह की पनाह है, और सूरतुल नास अंदर से आने वाली चीजों के लिए पनाह है अल्लाह। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ा जाए कुल हु अल्लाह के साथ, कुल हु अल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और फजर की नमाज में और मगरिब की नमाज में 3 बार पढ़ा जाए इन तीनों सूरतों। रात में सोते वक्त आप इन सूरत आयतल कुर्सी और इन तीनों सूरतों को पढ़ते, आप भी थू करते नफासा, और उसके बाद पूरे जिस्म पर हाथ फेरते। 3 बार आप ऐसा करते। हम लोगों को भी चाहिए कि सुन्नत की इस तरीके पर अमल करें। ये तो हो गई बात यहाँ तक। जरा आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ूं। मैंने कहा कि ये जो कौल है काफ वाव लाम से बना है। अब ये नोट करें, इससे जो फेले माजी बनता है वो है क़ाला, क़ाला, काफ वाली फतहा, क़ाला। यक़ूलु,
मुज़ारा है। यकूलु मस्दर इसका कौलन, कौलन व मकालतन, व मकालतन। जब ये ताक आखिर में आता है तो ते बोलते हैं आखिर में, मकालतन जब दो ज़बर के साथ। लिख लिया? सही लिखा है आप लोगों ने? अल्हम्दुलिल्लाह। वसवसा, 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 वसवसा सीन के ऊपर जज़म है, वसवसा। युवस्विसु, युवस्विसु या के ऊपर पेश है, उसके बाद वाव है, वाव पर ज़बर है। युवस्विसु, वसवासन, वसवासन, सीन अलिफ और सीन के ऊपर दो ज़बर, वसवासन, ये इसका मज़दर है। काला की तरफ चले जाएं। काला के मानी है उसने कहा, माजी। यकूलु वो कहता है या वो कहेगा, मुज़ारा। उसी तरह वसवसा उसने वसवसा किया, युवस्विसु वो वसवसा करता है या करेगा। ठीक है, लोग हैं हमारे साथ? जमाइयां तो नहीं ले रहे हैं, जमाइयां तो नहीं आ रही हैं। खनसा, खन्नास, खनसा, यखनुसु, खनसन व खुनूसन, व खुनूसन, खुनूस, खुनू खींच रहा हूं मैं, नून के बाद वाव है, खुनूसन। लिख लिया? खनसा यखनुसु, खुनसन व खुनूसन। लिख लिया? नून सीन सब पर ज़बर, यखनुसु या लग गया पहले, खा के ऊपर जज़म, नून के ऊपर पेश, सीन के ऊपर पेश। खनसन, खा के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर ज़बर, सीन अलिफ दो और सीन के ऊपर दो ज़बर, खनसन व खुनूसन। खा के ऊपर पेश, नून के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जज़म, सीन अलिफ दो ज़बर, खुनूसन। ओके, माने साफ जाहिर है। खनसा उसने कोई ऐसी हरकत की करके खिसक गया, यखनुसु वो ऐसी हरकत करके घिसक जाता है या घिसक जाएगा, मुज़ारा। अब आइए सदर पे। सदर, सदर के मानी आपको मैंने बताया सीना होता है, इससे जो फेल माजी बनता है सदरा, स्वाद दाल रा, सदरा। यसदुरु, यसदुरु, यसदुरु या स्वाद दाल पेश रा पेश, यसदुरु। सदरन, सदरन, सदरन व मसदरन, मसदरन। मसदर भी आप जानते हैं, वही लफ्ज़ है, मसदरन। अब आइए जीम नून नून की तरफ। जन्न, जीम नून के ऊपर शद्दा, जीम पर ज़बर, नून के ऊपर शद्दा और ज़बर, नून के ऊपर तशदीद और ज़बर, जन्ना। या जुन्नु, या जुन्नु या लगा पहले, जीम के ऊपर पेश, नून के ऊपर तशदीद और फिर पेश, यजुन्नु। मस्दर है जन्नन, जीम नून अलिफ, जीम के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर शद्दा और दो ज़बर,
जन्नन व जुनूनन, जुनूनन जिन के ऊपर पेश, नून के ऊपर पेश वाव और फिर उसके बाद नून अलिफ दो जबर, जुनूनन। लफ्ज जुनून उर्दू में भी बोलते हैं, ये जुनूनी है, वहां बोलते हैं ना। फलक, फलका फेल माजी, यफलिकू, 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 फलकन, फलकन, लिख लिया। फलका सब पर जबर है, यफलिकू लाम के नीचे जेर है, फा के ऊपर जज़म है, यफलिकू। फलकन लाम के ऊपर जज़म है, फल काफ अलिफ दो जबर, फलकन। आइए खलका, खलका फेल माजी है, खलका फेल माजी है। यखलुकू, यखलुकू लाम के ऊपर पेश, काफ के ऊपर पेश, यखलुकू। खलकन मस्दर है, व खलकतन मस्दर है। खलकन और दूसरा है खलकतन। खलकतन ता आखिर में ता मरबूता है, बोलते हैं, उस पर दो जबर है, खलकतन। दो लफ्ज और रह गए, गसका, यगसिकू, गसका, यगसिकू, सीन के नीचे जेर, यगसिकू, काफ पर पेश, यगसिकू। गस्कन, गस्कन। Is it okay? वकाबा फेल माजी, वाव काफ बे से, वकाबा। यकीबू, वक्बन व वकूबन, वक्बन, वक वाव काफ के ऊपर जज़म, वक्बन बे अलिफ दो जबर, व वकूबन, वकूबन। अब तक आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, तीन हरफी लफ्ज में जब माजी से मुजारा बनता है तो उसके पहले या लग जाता है। नोट किया है ना ये? माजी से जब भी मुजारा बन रहा है या लग जाता है। सब में आप सब में नोट करेंगे, है ना? जब भी माजी से मुजारा बनता है तो उसके आगे या लग जाता है, और बाद में जो हर्फ आता है उस पर जज़म लग जाता है। जैसे वकाबा, फिर इसका जो है जो हम आए उसका बनाए, तो क्या हुआ इसका? नहीं खैर वकाबा में नहीं, वाह क्योंकि वाह इसमें हुर्फ इल्लत है इसलिए इसमें पता नहीं लगेगा। फलाका में आए, फलाका यफलिकू, यफ फा के ऊपर जज़म लग गया, यफलिकू। खलका यखलुकू, है ना? ये चीज नोट करें, हमेशा वो यार ये बात सही है। अच्छा, यहां तक आने के बाद मैं यहां रुक रहा हूं। ये दोनों सूरतों की अहमियत मैंने बता दी। इन दोनों सूरतों को मैंने जानबूझ करके बताया है कि ये दोनों बड़ी अहम सूरतें भी हैं, और हमारे जैसे लोग नमाज में जल्दी जल्दी नमाज को पढ़ना होता है तो ये आमतौर से ये सूरतें पढ़ते हैं। कम से कम आप पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा है। ये दो एडवांटेज होगा। अच्छा, यहां तक आने के बाद मैं आपको बता दूंगा अब तक जो अल्फाज हम लोगों ने जाने हैं अब तक, आज तक ये 11,812 अल्फाज हो गए। 11,812 अल्फाज 600 सफ़े के कुरान में निकाले ढूंढ ढूंढ के इन अल्फाज को। अच्छा, अब एक आखिरी बात जिसका वादा मैंने किया था पिछली बार, आपसे नहीं किसी से। ये किताब आपको नजर आ रही है? कैन यू रीड इट? रीड इट।
क्या लिखा हुआ पढ़िए. Vocabulary of the Holy Quran. की लिखी हुई है, नाम नजर नहीं आ रहा, नीचे थोड़ा ऊपर करेंगे तो नाम नाम नजर नजर नहीं आ रहा. अच्छा. कंपाइल्ड बाय डॉक्टर अब्दुल्ला अब्बास अल नदवी. डॉक्टर अब्दुल्ला अब्बास अल नदवी. डॉक्टर अब्दुल्ला अब्बास अल नदवी. ये उसी तरफ ये लिखा हुआ है, पढ़िए. कामूस अल्फाज अल कुरान अल करीम. हाँ, कामूस कहते हैं डिक्शनरी को. अल्फाज तो जानते हैं आप, और कुरान करीम भी आपको मालूम है. कुरान करीम अरबी, उसके नीचे लिखा हुआ है अरबी अंग्रेजी. ये अरबी उर्दू भी दस्तयाब है मेरे पास. ये अरबी अंग्रेजी है, मैं इसको ज्यादा बेहतर समझता हूँ. उर्दू में भी आप ले सकते हैं. ठीक है. इसमें जितने भी अल्फाज कुरान के हैं वो सारे अल्फाज इनमें हैं, और सबका सब मिलेंगे कहाँ से? इन्हीं हुरूफ है जो बेसिक अल्फाबेट्स हैं, उन्हीं से आप तलाश कर सकते हैं. ठीक है. दूसरी किताब पढ़िए. कुरान मजीद का उर्दू लगत. उर्दू लुगत किसकी लिखी हुई है? डॉक्टर मोहम्मद मियां सिद्दीकी. डॉक्टर मोहम्मद मियां सिद्दीकी. ये किताब भी आपको यहाँ मिल जाएगी बड़ी आसानी से. इसमें इसका एडवांटेज ये है कि जो भी लफ्ज आपको कुरान में देखना है उसको स्ट्रेट वे में आप देख सकते हैं. यानी डोंट नीड टू नो द रूट अल्फाबेट्स, बगैर उसके आप इनमें देख सकते हैं. जैसे लफ्ज आया तुशरिका, मिसाल दे रहा हूं. लफ्ज आया तुशरिका, देखें यहाँ बोला है मैंने, ये लफ्ज आया, देखें पढ़ें, यहाँ पढ़ें. वो ब्राइटनेस मतलब पढ़ा नहीं जा रहा है. तुशरिका पढ़ सकते हैं यहाँ पर. तुशरिक दी सेकंड वर्ड है, यानी कोई, हाँ सेकंड वर्ड है. मैंने आप कुरान में जब आपको तुशरिका मिला तो आप देखना चाहते हैं इसके मानी क्या है, यू कैन फाइंड आउट हियर. इस तरह से ये ज्यादा पढ़ते हुए ज्यादा हैंडी है माने तलाश करने में. लेकिन वो जो ये है आपको रूट वर्ड से, इसमें आपको पता लगता है कि कुरान में कितने कितने अल्फाज का कैसे कैसे अल्फाज आए इन्हीं रूट वर्ड से. तो ये कहीं ज्यादा मच मोर इंफॉर्मेटिव है ये जो पहले मैंने आपको देखा. ये दो डिक्शनरीज आप लोग आराम से उर्दू वादा में मिल जाएगा. आपके यहाँ अगर कोई उर्दू वादा है तो वहां से मिल जाएगा, वरना यहाँ से माशाल्लाह यहाँ से DHL से जा सकता है, नो प्रॉब्लम. ठीक है. मेरा ख्याल है कि वक्त ज्यादा हो गया है. मैं इजाजत चाहूंगा माजरत के साथ, और आपसे गुजारिश ये है कि इसको आप जल्द से जल्द लोड कर दिया करें YouTube पर, ताकि जब लोग चीजें ताज़ा हों उस वक्त वो अपने आप को उसको दोबारा दे कैन रिवाइव देयर मेमोरी, है ना? इंशाल्लाह. चलें. कोई बात कहनी है? नहीं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर इसी टाइम पे इंशाल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्लाह ताला हम सबको जिस मकसद की तरफ पढ़े हैं उसमें कामयाबी नसीब फरमाए. आमीन या रब्बल.